Radio, especially community radios, play an important role in sensitizing communities towards meaningful change. Sorry to scare you, but किसी को तो करना ही था. And with this, you can assume that everything else that follows will be much better. अब होप और परिवर्तन की आवाज़ के समय हो गई है, इसलिए मैं स्टेज पे अपनी पहली पैनल बुलाना चाहती हूँ. Community radios, community advocates for climate change, RJ Abhishek from Radio Mayur, Kirti from MOPR, Dhanashri from Radio Sugar Sangli, Paresh Ji from Campus Radio, and our moderator for the morning, RJ Vijdan from Radio Mirchi, Kashmir. Good morning, ladies and gentlemen. I am Vijdan. I'm an RJ from Kashmir. I host a show for Radio Mirchi, and today I'm going to moderate this session. आज बात जो होगी वो क्लाइमेट चेंज के बारे में होगी, और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिस पे शायद हम उतना गौर व फिक्र नहीं करते हैं. आज बात छेड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मीडियम दैट इज़ रेडियो. और मेरा हमेशा ये मानना है, इतने सालों से मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई रेडियो करते करते, मेरा मानना ये है कि रेडियो पे जो बात होती है वो दिल से होती है, और दिल से जो बात निकलती है वो असर तो रखती है. In all of this, what is important is a web of community radios has developed in India. It is thriving, working, and of course it has an impact. तो आज हमारे चारों पैनलिस्ट जो हैं, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे विज़ावी रेडियो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लेवल पे बहुत इम्पैक्टफुल काम किया है. मैं सेशन को ओपन करना चाहूँगा विद अ वेरी स्मॉल बेसिक क्वेश्चन, विच इज़ कि आपने ऐसा क्या किया जिससे क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों तक जागरूकता पहुँचा सके. बहुत सादा सा सवाल है सभी लोगों के लिए. आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन विद कीर्ति, जो एक कम्युनिटी रेडियो में काम करती हैं. She works in our community radio, and she will tell us about the initiatives that her radio has taken, where they have spoken about climate change. Because you guys in your area, Tamil Nadu mein, you face a lot of disasters. You've seen cyclones, you've seen a lot of disasters. So in your community radio, Kirti, what is it that you've done which you could share with the audience? Anevarukkum vanakkam and sabloku namaskar. I'm Kirti. So I'm coming from a community radio station that's located in Chennai, in Tamil Nadu state of Tamil Nadu. And as Sir said, that we've been facing disasters including cyclones, floods continuously for the past decade, including Barda, Thane, and 2015 Chennai floods, so which was a great sensation. So I think that was the time people were really aware of what's happening, and the issue of climate change really stuck that it's going to be terrific, that we will have to concentrate on that kind of a horror. So in terms of action, after the floods, people also understood that there is a deep infrastructure problem, and houses are built in terms of rivers, lakes, etc., and we are occupying the environment's place. So in context to that, we have created so many narrowcasting and outreach activities. And initially since we are in a campus community radio, we have come up with a plan of banning 100% plastic. So our campus is a plastic free campus. So that was the first initiative. So instead of plastic, we only use banana leaves or any other alternative that can push plastic far away from us. And so we also have created innovative techniques where reuse and well thought of waste can be done in every possible way. And I also wanted to tell you that our last narrowcasting with the community zone of coastal area clearly initiated that, clearly declared that migration is becoming one of the greatest threats. So in order to combat that, we are, telling them what can be done or what can be improved from where they can live in terms of, employment, in terms of education, etc. So I think we are coming up with the smallest change possible that can combat climate change, but I think we have a very long way to go. And we are also coming up with factors that can be of great problems to us, and how we can combat that in coming ways. I think the initiatives that you spoke about, they're very positive, and they will snowball into bigger change. We'll move on to
the other panelist here जो बिहार से हैं, तो तमिलनाडु से बिहार चलते हैं और बिहार में देखते हैं क्लाइमेट चेंज पे क्या काम हो रहा है। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि रेडियो से ये काम हो रहा है और कम्युनिटी रेडियो इज़ डिफरेंट। मैं जिस एंटरटेनमेंट सेक्शन से आता हूँ, हम नंबर्स की बात करते हैं, लाखों व्यूज़, लाखों लिसनर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चकाचौंध की बात करते हैं। बट ये लोग ऐसा काम करते हैं कम्युनिटी रेडियो से जहाँ पे 1-on-1 लिसनरशिप है। अगर आपके इनके पास 100 लिसनर्स हैं तो वो बिल्कुल इनसे जुड़े हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ लार्जर फैमिली है साथ। तो अगर ये किसी दिन ऑन एयर नहीं जाते तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। तो वाबस्तगी जो है इनके लिसनर की, वो हमारे लिसनर से डिफरेंट है और मैं क्रेव करता हूँ ऐसी वाबस्तगी। तो हम बिहार चलते हैं और बिहार में क्या कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो। मुझे मालूम है कि देहात में, मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, क्लाइमेट चेंज लफ्ज़ को समझाना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इफ़ यू यूज़ योर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, आप अगर अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और जो आप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू विजदान जी। बिहार की बात करें तो ये एक बहुत आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जो 50% जो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्टिव जो ज़िले हैं उसमें से 14 ज़िले हमारे यहाँ के हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं। 38 ज़िलों में से 31 ज़िले बहुत कमज़ोर हैं, जिनमें बहुत ज़रूरी है लोगों तक उस तरीके से बात को पहुंचाना जिस तरीके से वो समझ सकें। हम सवाल खड़ा करते हैं और सोचने पे लोगों को मजबूर करते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग अपने क्षेत्र में अगर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। कहीं भी कम्युनिटी जो है, जो लोग कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। कारण ये है कि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग बाकी सभी माध्यमों में होता है, लेकिन जो बात दिल को छू जाती हो वो बस कम्युनिटी रेडियो ही कर पाती है। मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है, क्योंकि मैंने 2016 में शुरू किया था कम्युनिटी रेडियो और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के वापस अपने शहर गया और वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट की। और मैं खुद भी शो करता हूँ और मतलब कम्युनिटी रेडियो में ऐसा होता है ना कि आपको सब कुछ करना पड़ता है। आप वहाँ पे झाड़ू भी लगाते हैं, खुद से साफ़ सफाई भी करते हैं, खुद शो भी करते हैं, खुद मार्केटिंग भी करते हैं, खुद लोगों से मिलते भी हैं, डीएम साहब को भी अप्रोच करते हैं और जब डीएम साहब स्टूडियो में आते हैं तो आप उनके लिए चाय भी लाते हैं। तो आई थिंक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर समबडी जिसने अपनी नौकरी छोड़ी और वापस हम सबको इतना स्ट्रांग बना देता है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग सवाल खड़े करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास है जो कि हम लोग कैसे सवाल खड़ा करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन सोचने पे मजबूर करेंगी, जो हम लोग अपनी भाषा में करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब भोजपुरी में है शायद आप लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छा लगे। एक गीत है जो हम लोग अक्सर क्लाइमेट चेंज के जब भी शो होते हैं, हम लोग जल जीवन हरियाली बिहार में नीतीश कुमार का जो योजना है वो चलता है, उस पर हम लोग काफ़ी अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। लेकिन लोगों को समझ में आ जाए उसके लिए एक गीत है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। वो गीत है अंगना दुअरवा मुंडेरवा डेहुरिया पर दनवा चुगत नाही लौके रे गोरैया, दनवा चुगत नाही लौके रे गोरैया। नदी बीचे गंगा जी के रहे एगो गौआ जे, अब जाने कहाँवा बिलाइल ए बटोहिया। मतलब हमारे यहाँ एक नदी है गंगा जी में, उसमें एक गांव हुआ करता था जो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया है। अब वहाँ के लोग नदी के किनारे बसते हैं, रहते हैं, क्योंकि वो बाढ़ में कहीं खो गया है वो गाँव। अब उसकी यादें रह गई हैं। तो वो गीत में इस तरीके ऐसा है कि गंगा जी में वो जो गांव था वो कहाँ चला गया, कहाँ बिलागल। एक लाइन और है, नानी की यहाँ गौआ में रहे ढेर गाछ बाड़ी,
मतलब नानी के यहाँ गांव में बहुत सारे गाछ थे, बाड़ी थे, जंगल थे। सब का के बेची बस गईले रे बटोहिया, मतलब सबको बेच के शहर में जाके लोग बस गए, सब कुछ खत्म हो गया। आगे है, पहिले के सावन के महीना वालू भावन रहे। पहले बारिश होती थी अच्छी, लोग उसमें झूमते थे। अब आँखी तर से केने गईल रे बदरिया। अब आँख तरसती है कि वो बादल कहाँ चले गए जो पहले हुआ करते थे, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, वो सारी चीज़ें। कौनो टोला डूबल, कौनो भागी में सुखाड़ आइल, का जाने होत काबा सोचाए बटोहिया, का जाने सोचा होता सोचाए बटोहिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके बारे में सोचिए, ये क्या हो रहा है। हम लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों से हट के हमें बेसिक लेवल पे लोगों को टच करना होता है, और हम लोग यही सवाल खड़ा करते हैं कि सोचिए ये क्यों हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से ये लाइव परफॉर्मेंस भी हमको देखने को मिला है, यही बात हो रही थी कि जब इस तरह से इस मैसेज को पिरोया जाएगा, उसमें ऐसे इसको बना के लोगों तक पेश किया जाएगा, तो तभी उसमें एक इम्पैक्ट आता है। और इम्पैक्ट की बात अगर करें, देयर आर पीपल इन महाराष्ट्र, देयर आर पीपल इन गुजरात जो काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, यूजिंग रेडियो एज अ मीडियम, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो शुगर, बड़ा ही खूबसूरत नाम, मीठा सा नाम है। हमारे रेडियो का नाम तो मिर्ची है, तो कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट यू गाइस डू। रेडियो शुगर सांगली से हमारे साथ धनश्री हैं, और ये नाम सुन के ही हमारे दिमाग में शुगर केन आता है, और शुगर केन इंडस्ट्री से, शुगर केन फार्मिंग से बहुत सारे इश्यूज जो हैं डोमिनेट करते हैं हमारे डिस्कोर्स को। कभी उनके बारे में बात होती है, कभी नहीं भी होती है, इग्नोर भी होती है, लेकिन अपनी कम्युनिटी में इस शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोग इससे जुड़े हैं और उनकी ज़िंदगियां इससे जुड़ी हैं। तो इस रेडियो की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या होता है आपके रेडियो में, इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को प्लीज़ पहले बता दें। ज़रूर, थैंक यू सर। मैं धनश्री, रेडियो शुगर इस्लामपुर से। जैसे कि सर आपने पहला सवाल पूछा था कि आप क्या इनिशिएटिव करते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, तो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हमारा रेडियो है। तो सबसे पहले तो हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके, जूनियर कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयर करने की कोशिश की। जैसे कि सर ने कहा, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल न करते हुए आसान भाषा में हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की। हमारे सर तो कहते थे, अभी ही इज़ 50+, तो वो कहते थे बच्चों को, बच्चों मेरा तो यहाँ का जीना हो लिया, अब आपको जीना है, तो आपको अपना जो प्लैनेट है तो कैसा रखना है आप तय करो। ऐसे हम शुरू करते थे बच्चों को समझाने के लिए। और एक चीज़ मुझे ध्यान में आई, ये क्लाइमेट काउंटडाउन जो प्रोजेक्ट हमने किया, 8 एपिसोड्स किए, 8 नैरोकास्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो एक चीज़ ध्यान में आई कि इस्लामपुर हो, असम हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी हो, पूरे भारत में अगर अनेकता में एकता अगर कोई है, तो हमारे यहाँ सुविधा आने से पहले उसकी लिटरेसी नहीं आती। हमारे पास सुविधा आ जाती है, लेकिन उस सुविधा को हम कैसे यूटिलाइज़ करें उसकी लिटरेसी नहीं आती। प्लास्टिक तो आ गया, उसको यूज़ कैसा करना है। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक आप यूज़ करके कहीं भी फेंकना नहीं है, यह आपको पहले सिखाना चाहिए, बाद में आपको प्लास्टिक यूज़ करने के लिए आपके हाथ में देना चाहिए। ये मुझे ध्यान में आया। लेकिन ये जो 5 रुपए का कुरकुरे मिलता है वो हमारे यहाँ ईजी आसानी से मिल जाता है। अगर सेमी अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पहले पहुँच जाती है। तो बच्चों को स्कूल में जब रिसेस रहती है
तो ये जाके ये खरीदते हैं, खाते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करना पड़ा हमें कि हम जब भी स्कूल जाते थे तो ऐसे कैंपस में सब ऐसा कचरा पड़ा दिखता था। तो जाते ही पहले बच्चों को हम बताते कि ये ऐसा नहीं करना है, आपको क्या क्या करना है, आपको घर में क्या क्या बताना है। तो पूरा हमारा सेशन ख़त्म हो जाने के बाद जब वो हमें थैंक्स कहने के लिए गुलाब लाते थे, तो गुलाब के वो ऐसा प्लास्टिक लगाते हैं ना, तो वो बच्चा वो मेरे हाथ में देने ही वाला था कि वापस चला गया, वो प्लास्टिक निकाल के रख दिया और मेरे हाथ में गुलाब। दैट इज इम्पैक्ट। यस, ये इम्पैक्ट बहुत मुझे अच्छा लगा और यही ताकत है कम्युनिटी रेडियो की, नैरोकास्टिंग एक्टिविटीज़ की। और जैसे कि बात आपने की शुगर केन का जो हमारा पूरा एरिया है, तो उसके लिए हम आगे चल के काम करने वाले हैं, क्योंकि ये तो बच्चों को हमने बताया और क्लाइमेट एम्बेसडर्स भी तैयार हो रहे हैं जो कि आगे चल के ये काम करते रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारा एक एक्टिविटी चल रहा है प्लॉगिंग करके, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा। पिकिंग अप गार्बेज व्हाइल जॉगिंग, ये है प्लॉगिंग। हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर संडे ये एक्टिविटी लेते हैं। सुबह 7 बजे बाहर निकलते हैं और कचरा जो गिरा रहता है वो उठाते उठाते जॉगिंग करके पूरा एक राउंड करके आ जाते हैं। तो हम रेडियो पर से लोगों को बता दें कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो प्लॉगिंग की एक्टिविटी है तो आज इस एरिया में होने वाला है, अगले संडे उस एरिया में होने वाला है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो हमारे साथ आ जाते हैं और ये करते हुए हम उनको बताते हैं कि प्लॉगिंग कोई सामाजिक कार्य नहीं है, ये आपके अपनी सेहत के लिए है। तो इस एक्टिविटी में भी बहुत लोकल जो सिटीजन्स हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कम्युनिटी रेडियोज़ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। अगर 50 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो 50 लोग फिर आगे एक वेब ऑफ पीपल बन जाता है, एक ऐसा जाल सा बन जाता है जिससे आगे जाके हम चेंज देखेंगे। और कभी कभी हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, कि इतने सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान इन चीज़ों की ओर नहीं जाता है क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, वो बाकी ख़बरों से, चीज़ों से हमारा ध्यान जो है भटक जाता है वहाँ चीज़ों पे। बट ये एक प्लेटफॉर्म, एक इनिशिएटिव ऐसा है कि हम इन स्टोरीज़ को देखें और फिर इन स्टोरीज़ को फॉलो भी करें। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि इन सब लोगों को ढूंढ लें इंटरनेट पे, इनके काम को फॉलो करें, बिकॉज दिस विल इंस्पायर यू। और इससे एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हमें भी मिलता है अपनी जगह पे, कि अगर मेरे पास कोई मीडियम है, मैं भी उसका इस्तेमाल किसी छोटी सी सोशल चेंज के लिए करूं। और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट के हवाले से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इकॉनमी शायद आपके स्टेट में ठीक हो, मेरे स्टेट में ख़राब हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज हम सबको पूरी दुनिया में सेम तरीके से इम्पैक्ट करेगा। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं हम गुजरात से रेडियो मयूर से हमारे साथ हैं परेश, रेडियो कैंपस से, गुजरात से ये आए हैं। परेश हमें बताएंगे ग्राउंड वाटर के हवाले से या किसी और ऐसी मुश्किल के हवाले से कैसा काम किया है रेडियो कैंपस ने, जो कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करता है। गुड मॉर्निंग। जब भी हम बोलते हैं हम गुजरात से हैं, तो जो भी हमको सुनता है या देखता है उनका एक नज़रिया बदल जाता है आजकल पूरे देश लेवल पे। तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाते हैं। और जो रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, चरोतर, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन बेल्ट ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, तो उसको इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो स्टेशन है वो 2005 से हम चला रहे हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी बहुत कर रहे हैं हम। पिछले कुछ सालों से जो हमने फोकस किया था, जो हमारा गोल्डन बेल्ट है, शायद मेरा बर्थ भी वहाँ पे हुआ है, तो 50 साल में कभी भी मैंने पानी कब नहीं आएगा ऐसा सुना नहीं है। मतलब हमारे रीजन में पानी की कोई कमी नहीं है। और उसका इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है कि अभी जो जनरेशन्स है उनको पानी का यूज़ क्या करें और कैसे करें, या तो उसको संभालना कैसे है, उसके लिए कोई आइडिया ही नहीं है।
वहाँ तक कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ गुजरात के बहुत सारे रीजन से लोग पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न, मतलब वहाँ पे पानी दिनों तक नहीं आता है। वहाँ के बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो ऐसा देखा भी हमने कि वो लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पानी है। सो लाइफ एंड पानी तो सब समझते ही है। हमने बहुत, हमारा जो तजुर्बा था, लोगों ने भी बहुत काम करने के बाद पिछले 1-1.5 साल से जो हमने फोकस किया है, जो एक बहुत सीरियस इश्यू है, खैर हमारा लोकल रीजन में तो है और उसके अलावा भी, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। हमारे पास सरफेस वाटर हमारे रीजन में इतना भी है, फिर भी रूटीन डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी हम ग्राउंड वाटर से, मतलब ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी वही है, इरिगेशन कैनाल से भी होता है, सरदार सरोवर की वजह से अभी बहुत, नर्मदा की वजह से पानी है, फिर भी अंडर वाटर ग्राउंड वाटर को निकाल के इरिगेशन एंड इंडस्ट्री, दे आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द ग्राउंड वाटर, इनफैक्ट दे आर डिस्टर्बिंग द कंप्लीट पैटर्न, और इसका लॉन्गर रन में बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे नज़दीक में एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, उनका एक प्रोजेक्ट था नापो जल बचाओ कल। तो उनका काम है पूरे नेशनल लेवल पे, उन लोग तो करते हैं, लेकिन हमने स्टेशन को उनके साथ जोड़ के हमने जो एक्टिविटी की है, हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं उनको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है उसमें जो ओपन वेल होता है उसमें हम साल में 2 बार वाटर लेवल मेजरमेंट का उनका एक प्रोग्राम होता है, सो बिफोर मॉनसून एंड आफ्टर मॉनसून, और वो पैटर्न और उनका एक पोर्टल भी है, तो डेटा वहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये मतलब अक्रॉस द कंट्री करना है, तो जितने वॉलेंटियर ज़्यादा होंगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है, वो जो पोर्टल है वो ओपन सोर्स है, एक्सेस उनके सबके पास होते हैं, तो वो डेटा का यूज़ करके कोई भी फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकता है कि ग्राउंड वाटर का सिचुएशन कौन से रीजन में क्या है, उसके हिसाब से फ्यूचर में उन वहाँ पे क्या इमीडिएट या लॉन्गर रन में कोई भी चीज़ को प्लान करना है। सो इन अ वे वी आर इन्वॉल्विंग द यूथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक्टिविटी के बारे में बता रहे कि ग्राउंड वाटर अभी तो आप ले रहे हो लेकिन उसमें भी बहुत सारा वेरिएशंस होता है, तो वो समझाने का हमारा प्रयास होता है। उसमें हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं। वही चीज़ को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो एक और बड़ा इश्यू है हमारे वहाँ, आप रीजन के वाइज करो तो अहमदाबाद से लेके वापी तक अगर एक नेशनल हाईवे उस पर आप ट्रैवल करेंगे तो उसके सराउंडिंग में मैक्सिमम आपको इंडस्ट्री मिलेगी, वो भी केमिकल इंडस्ट्री, और वो लोग भी पानी की तो उनको रिक्वायरमेंट तो होती है, वो तो सरफेस वाटर लेते हैं, ग्राउंड वाटर भी कभी लेते हैं, लेकिन जो उनके वेस्ट होते हैं केमिकल वेस्ट, बहुत जगह पे वो ऑब्जर्व किया है, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से करती है लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ वो वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करते हुए सीधा ग्राउंड में उसको पंप इन कर देते ग्राउंड में, मतलब दे आर स्पॉइलिंग द अंडरग्राउंड वाटर। तो उसके अवेयरनेस के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि आप कभी भी कहीं जा रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ आपके ध्यान में आता है, आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वो भी समझाना है। तो ये 2 मेजर है जो हम ग्राउंड वाटर लेवल पे उनको फोकस करके हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको अवेयर करवाते हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज इनिशिएटिव्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो इन लोगों को दरपेश हैं, विच दे सी अपने डे टू डे काम में, इनको चैलेंजेस भी आते हैं। आई विल कम बैक टू कीर्ति एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट चैलेंजेस, और जो the challenges that you're facing when you're looking at a disaster or you're looking at different aspects of climate change. So how do you deal with them, and what are those challenges in terms of using radio as a medium to broadcast data, meaningful conversations, and how does audience react? A little light on that as well. So before that, I would just like to mention that the plugging initiative is really a very great initiative, and I'd love to implement that if possible in our neighborhood. So the answer to question is that the problem arises in 2 different levels. One is that the person with a lesser level of education and illiterate will easily understand, will easily listen to us
if at all we are coming up with a solution. But the problem with the educated person is that he thinks that he knows everything and will never give a ear. So that is when the problem comes. So we have initiated, or we have thought that the major change maker is that the student or a younger generation. So we give the education, or we give the outreach or the awareness to them, and they will take it forward to their circle. In terms of bringing in community radio as a tool, is that entertainment is one of the major tools with which you can attract audience. So we've come up with competitions, we've come up with jingles, we've come up with music competition that the community members can participate. Of course there is something that they will benefit out of that. So we are trying to involve, we are trying to bring in the community members to our radio station and introduce to all the schemes. In fact, Tamil Nadu is the first state to launch its own climate action plan. But sadly, Tamil Nadu, even residents over there are not aware of what's happening there. It was launched almost few years back, and yet we are not aware of what's the mission or what it has and what it offers to the citizens of Tamil Nadu and for the country. So sadly, that is one of the biggest challenges that we are facing. But in order to achieve a positive note, or to take a positive step forward, I think the climate countdown is also helping us way more than we what imagined. So keeping that in mind, I think the challenges are there, but we have come up with innovative ways, like involving community members, or drive. We also did a drive, sapling drive, and we also did a rally recently in order to make people understand that there is something called climate change and it's not a joke. Right? Absolutely. People think that literates are talking so much. The earth will always cure itself. So that is one of the biggest myth that it still exists. So I think with all these drives, or plantation drives, etc., we will have to first make them aware that something like climate change is happening. So yeah. Absolutely. We did one initiative back home in Kashmir where we changed our frequency. So our frequency was Mirchi 98.3. We changed it to Mirchi 98.3. So we did a plantation drive. We changed the frequency. It had a good impact with people. Talking about impact and suggestions, अगर हम रेडियो की बात करें तो अभिषेक एज समबडी जिन्होंने इतने साल से किया है, और आपने जैसे कहा कि आप वापस जाके आपने नौकरी छोड़ी, आप वापस गए, तो पैशन तो है आप में, वो जज्बा है आप में काम करने का. तो काम करते करते क्या आपको लगता है कि किस तरह से रेडियो को और मदद मिलनी चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम द स्टेट और वेदर इट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए, और किस तरह से पैकेजिंग हो या आपका कंटेंट हो उसको बेहतर किया जा सकता है? तो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं, यंग लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी रेडियोज़ से, जो एक सजेशन आपसे आ सकती है कि क्या किया जा सकता है इस मीडियम को बेहतर बनाने के लिए? मैं इस विषय पे आज से नहीं, लगभग जब मैंने अपने रेडियो को चलाते हुए 1 साल जब पूरा किया था, उस समय से इस बात को रखते आ रहा हूँ कि हमें वो पहचान दी जाए, वो वैल्यू दिया जाए जो कि बाकी अदर्स जितने भी मीडियम्स हैं उनको मिली हुई है. क्योंकि हम लोग जितने इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं, जितने इम्पैक्टफुल हम लोग ग्राउंड पे दिखते हैं या फिर हैं, उतना शायद किसी और मीडियम में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं. अगर हम लोग किसी कंपैरिजन की बात नहीं करते हुए अगर देखें, तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम लोग के स्टेशन पे लोग चले आते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराने, यहाँ तक कि कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों को हम लोगों से कि भाई बिना आपके सजेशन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे जब इम्पैक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ऐसी जब बॉन्डिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो बिहेवियर चेंजेस में हम लोग सबसे आगे नज़र आते हैं. अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी, मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ कि हम लोग को सशक्त करने की ज़रूरत है, हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो कंटिन्यूसली हमारे साथ रहे. लोकल लेवल पे हम लोग को अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा लेना पड़ता है. जैसे कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात रखनी है, उनसे कुछ काम लेना है, उनके मैसेजेस लेने हैं, तो अपने अप्रोच से करना पड़ता है. वो लोग कभी भी हमें उस तरीके से नहीं देखते हैं कि हमें स्पेशली किन्हीं चीज़ों के लिए हमें दिया जाए या फिर हमें सपोर्ट किया जाए. हमें खुद ही आगे बढ़ के चीज़ें करनी पड़ती हैं. दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी
जैसे आप लोग बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज या फिर किसी भी स्कीम या फिर किसी भी पॉलिसी की, तो मैं डे वन से कहते आ रहा हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा स्कीम, बड़ी से बड़ी पॉलिसी सिर्फ एसी कमरों में बैठ के डिज़ाइन करने से चीज़ें नहीं ग्राउंड पे आती हैं। हम लोग जब फील्ड में देखते हैं तो मामला कुछ और ही रहता है। क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, हमारे स्टेट में भी बनी है। जल जीवन हरियाली बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्थिति वैसी नहीं है। 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य हमारे यहाँ है, और अभी आने वाले टाइम में 2.5 करोड़ पेड़ और लगने वाले हैं सिर्फ उसी स्कीम में। लेकिन अब बात यह है कि वो पेड़ लगते हैं कि नहीं लगते हैं, उनका संरक्षण होता है कि नहीं होता है, कि सिर्फ पेपरबाजी हो गई या फिर डॉक्यूमेंटेशन खाली हो गया। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हम लोग डॉक्यूमेंट बाजी में नहीं विश्वास रखते हैं, हम लोग इमोशनल बॉन्डिंग से उनके बिहेव को चेंज करने में मतलब विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने आया जब ये बनारस से जो क्रूज़ चली थी, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ जो बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ तक चली थी। और आपको जान के ये मतलब हैरत होगी कि जो हमारे यहाँ का एरिया है, नदी वाला जो साइड है, वो आज से 15-20 साल पहले वो काफ़ी पानी हुआ करता था वहाँ पे, लेकिन अभी वो जो स्तर है उसका वो काफ़ी कम हो गया है। तो जब क्रूज़ उधर से गुजरी तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए जहाँ पे वो क्रूज़ आगे नहीं बढ़ पाई, और उसे फिर एनडीआरएफ की टीम ने फिर उन्हें 2-4 छोटे शिप से खींच के आगे किया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाटरवे का अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा एक एक चीज़, कि अगर हम लोग छपरा से गुजर रहे हैं, अगर हम लोग गोपालगंज से गुजर रहे हैं, तो वो बेसिक चीज़ें वहाँ हैं कि नहीं हैं। उस पर लगभग 30-40 फॉरेनर टूरिस्ट थे, और वो लोग जब हर जगह पे उतर रहे थे, तो एक जगह है हमारे यहाँ छपरा के पास डोरीगंज, वो वहाँ पे नदी का ही रास्ता है, तो काफ़ी दूर उस जहाज़ को रोका गया और फिर वहाँ से छोटे जहाज़ में टूरिस्ट को वापस किनारे तक लाया गया, फिर चीज़ें दिखाई गई, घुमाई गई। हम लोग वहीं थे, हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी एक बार एज अ मीडिया वहाँ पे अंदर जाते देखते हैं क्या है, बट वो हमसे बहुत दूर था नदी में, जो कि एक जलस्तर की कमी की वजह से, और ये बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। और वो जो रास्ता है बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ तक का, उसमें अभी वो जहाज़ पता नहीं कहाँ है, अपडेट्स आते रहते हैं हम लोग को बीच बीच में, बट चीज़ें मैं यही कहूँगा कि कोई भी स्कीम हो, हम लोग को भी चीज़ें मिलती हैं ऊपर से, हाँ भाई आप लोग को ये पॉइंटर्स मिल जाते हैं, ये चीज़ें करनी है, ये आपको फॉलो करना है, बट हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं तो चीज़ें बिल्कुल विपरीत रहती हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग रहती हैं। क्लाइमेट चेंज हम लोग जाके वहाँ बोलेंगे तो उनको समझ ही में नहीं आएगा, टेक्निकल चीज़ें हम लोग उनको समझाएंगे तो वो समझ ही में नहीं आएंगी। हम लोग का एक बड़ा रोल होता है कि हम लोग उनको कैसे कन्विंस करें, और इस बात को सबको समझना पड़ेगा, हमारा इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज़ों को फेस करते हुए चीज़ें कर रहे हैं, और मतलब आउट ऑफ द वे जाके हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग को ये लगता है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि इसका क्या, आप कैसे शुरू कर दिए, कितना पैसा लगा, इनकम कितना होता है। मैंने कहा भाई अगर आपको इनकम देखना है तो इस फील्ड में कभी मत आइए, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लिए, तो बिल्कुल आइए। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, बिहार में एक बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व, जो पूरा महापर्व माना जाता है, और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेचर कंजर्वेशन का। मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 दिन का जो त्यौहार होता है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फेस्टिवल्स इन बिहार और सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। इसमें नेचर की हर वो चीज़ यूज़ होती है जो कि हम लोग साल भर किसी चीज़ को नहीं देखे होते हैं, वो फ्रूट यूज़ हो जाता है। और एक फल है जो कि हम लोग पम्प्याला कहते हैं, वो विलुप्त हो चुका है। जब मैं छोटा था तो वो फल हम लोग बड़े शौक से ढूंढते थे मार्केट में कि कहाँ मिलेगा। आज वही फल 2-2 हज़ार रुपये किलो मिलता है, और उसके 1-2 दाने के लिए लोग वहाँ मारपीट करने लगते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो छठ पर्व है, उसमें नेचर की पूजा होती है, सन की पूजा होती है, जितने भी नेचुरल फ्रूट्स हैं, फल हैं, इनको लेके पूजा होती है, बांस की चीज़ों का यूज़ होता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्लाइमेट को सेव रखने का। दूसरी चीज़ है कि हम लोग ना कम्युनिटी में जब जाते हैं तो इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ना करते हुए उनको उनकी चीज़ों से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एक बड़ा फेमस है, जैसे बरगद के पेड़ को हम लोग बरहम बाबा कहते थे पहले,
और ये लोग कहते थे कि ब्रह्म बाबा का पूजा होता है वहाँ पे, और जिस पेड़ की पूजा हो, जिसको लोग अपने पूजा से जोड़ दें, उस चीज़ को हटाना नामुमकिन होता है। जिस चीज़ को अपने इमोशन से लोग जोड़ दें, उस चीज़ को मिटाना मुश्किल होता है, और ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो हमें अब वापस उन सब चीज़ों पे जाना है, और हमें वापस उन चीज़ों को वापस फॉलो कराना है कि अगर आप अपने संस्कार में पीपल के पेड़ को भगवान मानते हैं, उनकी तरफ आस्था है, तो आप वापस उस चीज़ को लाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी में, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि नेचर को वो लोग अपना सब कुछ मान चुके हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर आपके कल्चर में ये आ जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कल्चर में होती हैं, अगर कल्चर में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात इतनी गहराई से हमारे साथ जुड़ जाए, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा उस चीज़ को फॉलो करना। और जैसे कि आपने कहा, पैसे की बात की आपने, कम्युनिटी रेडियोज़ आर नॉट दैट कमर्शियल, और इनफैक्ट चाहे जर्नलिज्म हो, किसी ने ट्विटर पे कुछ दिन पहले लिखा था कि अगर किसी को जर्नलिस्ट बनना है या वॉइस ऑफ द पीपल बनना है तो उसको क्या करना चाहिए। तो किसी ने बड़ा स्मार्ट जवाब लिखा था नीचे, ही शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। तो पैसा जर्नलिज्म से या लोगों की आवाज़ बनने से शायद नहीं मिलता है वैसा। कुछ लोग यू टर्न करके बाद में पैसा कमा लेते हैं, बट प्राइमरीली ये जज्बे का काम है, और ये जज्बे का काम ये सब लोग करते हैं। आई विल कम टू परेश जी, और परेश जी से ये पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के साथ आप काम करते हैं, स्टूडेंट्स में भी आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं भी सोच रहा था, आयद होती है कि जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, जब मैं अपनी बात करूँगा तो कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस आप पर होता है, तो वो जज्बा जगाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वो कोई राइटर हो, चाहे वो कोई जैसे उर्दू में कहते हैं दियानतदार इंसान हो, तो उन लोगों का जो एक इम्पैक्ट होता है आप पर होता है। तो स्टूडेंट्स के साथ आप काम करते हैं, तो वो जज्बा जगाने में अराउंड क्लाइमेट चेंज और अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू डू, और किस तरह से स्टूडेंट्स रिएक्ट करते हैं, क्या सुनती है आज की जनरेशन? बहुत गुस्सा होता है बड़ों को कि तो आजकल की जनरेशन। हाँ, रियलिटी तो वही है कि अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बताते हो, वो आपको तो आपकी लाइफ में करना ही होता है। तो जैसे पेड़ लगाने की बात है, तो वो तो एक ट्रेडिशन हो गया है कि आजकल तो इवन कोई एक इवेंट होता है तो उसमें भी गेस्ट को एक छोटा सा पौधा भी दे देते, वो एक सिंबॉलिक होता है। लेकिन हम लोग क्या करते, मतलब नए जनरेशन के साथ जुड़ के अगर कुछ काम करना है तो उनकी भाषा में ही आपको भी कुछ करना पड़ता है। तो हमने इसको थोड़ा मतलब लोगों को बता दें, भाई ऐसा है तो आप एक, अगर आपने कोई ट्री प्लांट किया है तो उसको आप सेल्फी विथ माई ट्री, तो और वो आपके सोशल मीडिया में ही अपडेट करते रहो वीकली बेसिस पे, आप टाइम डिसाइड करो। तो उसमें दो काम होता है, जहाँ पे वो प्लांट किया है वहाँ पे वो जाएगा, वो तैयार होकर जाएगा तो वो जगह को भी थोड़ा अच्छा करेगा, और उसको मतलब वो एक साइकिल रहेगा, तो उसके हिसाब से ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का ही ऐसा आइडिया था, हम उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हो। वही चीज़ को हमने ये जो हमारा ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वाला था उसमें भी हमने बताया कि अब कोई बोलेगा मैंने ये कुएं का पानी का वाटर लेवल मेजरमेंट किया, उसमें उसको क्या फ़ायदा है। तो हमने बताया ये मेरा एडप्टेड वेल है, और माई सेल्फ विथ माई वेल साल में 2 बार करना है, तो वो जगह कैसे बदल रही है, 3-4 साल आप काम करेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा। सो वी ट्राई टू जस्ट कीप द बैलेंस, लाइक जो नया जनरेशन है उनका अपना भी रिक्वायरमेंट होता है, तो उनको हम उनकी भाषा में वही चीज़ को बताते, थोड़ा बताने का तरीका, काम करने का, करवाने का तरीका हमको सिचुएशन के हिसाब से अडोप्ट करना पड़ता है। रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ये मैं ज़रूर जानना बहुत चाहूँगा। अच्छा मिलता है इससे, क्योंकि आप सेल्फी की बात करते हो, आज का जनरेशन वही है, सोशल मीडिया पे उनको हमारे पेज पे आके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हम बोलते भाई आप आपके ही इंस्टाग्राम रील बनाओ, जो भी करो आप करते रहो, हमारा काम स्टेशन को पॉपुलर करना नहीं है, हमारा काम लोगों को वो काम के साथ जोड़ना है। तो हम तो वही करते हैं, और रिस्पॉन्स तो बढ़िया होता ही है। दैट इज़ वंडरफुल टू नो। वापस आऊँगा रेडियो शुगर पे, और आपसे भी यही सवाल है कि किस तरह से जो इंटरेक्शन का लेवल है उसको आप किस तरह से, जैसे आपने कोई चीज़ रेडियो पे कही और लोग आपसे बात करने आ गए या लोग आपसे किस तरह जुड़ते हैं, तो वो जो एक रिश्ता बनता है उसको कैसे आप लेवरेज का इस्तेमाल करके फिर बाद में लोगों से कुछ करवाते हैं। कोई ऐसा इनिशिएटिव या कोई, जैसे इन्होंने सेल्फी के बारे में बताया, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आप लेते हैं जिससे लोगों में खुद एक अपने लेवल पे वो करने की एक जागरूकता या एक जज्बा जाग जाए? मैं आपको
हेलो, मैं आपको बताना चाहूँगी क्लाइमेट काउंटडाउन जो हमने एक्टिविटी की स्मार्ट से जुड़कर, उसके ज़रिए हमने बहुत बच्चों से बात की। क्लाइमेट एम्बेसडर्स के तौर पे बहुत बच्चे हमसे जुड़े और बहुत बच्चे मुझे समझ में आया कि ये सच में कुछ करना चाहते हैं। दिखने में तो बहुत सीधे साधे गांव के लड़के दिखते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ इतने बेहतर थे कि एक स्कूल में हम गए थे, तो हमने हमारा जो पूरा लेक्चर था जो तय करके गए थे हम बताने, तो वो हो गया। उसके बाद वो लड़का आया, आपने कहा ये कचरा यहाँ मत डालो, ये प्लास्टिक है, ये नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने देखा है हमारा ये कैंपस कितना बड़ा है, और यहाँ फिर मैंने देखा सच में वो कैंपस बहुत बड़ा था और बिल्डिंग्स कुछ कम थी और ओपन एरिया बहुत ज़्यादा था। तो उसने कहा कि आप हमारे जो एजुकेशन सोसाइटी के कुछ हेड हैं उनसे कहिए कि यहाँ सोलर पैनल लगा सकते हैं। वो जो ओपन एरिया है वहाँ पे सोलर पैनल अगर वो लगाएं तो ये पूरे स्कूल का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो अपने आप निकल जाएगा। तो अगर आप ये कुछ कंसर्न लोगों से कहेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है। तो मैंने उस बच्चे को देखा तो महज 9th का लड़का था और उसने ये हमसे आके कहा कि आप जाके कहिए कि आप क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे तो आपकी सुनी जाएगी और उस पर कोई काम होगा। आई थिंक यंगर जनरेशन की बात इसलिए करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं दैट फ्यूचर जनरेशंस, तो उनको खुद ही ये जो है इसका फ्लैग बेयरर बनना पड़ेगा। मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कल भी मैं बताना चाहता था कि ये जो सोलर पैनल वाला है, अगर फिजिबल है तो मैं तो सब CRS को बोलता हूँ, आपके जो CRS का इलेक्ट्रिसिटी का डिपेंडेंस है वो आप सोलार पे चले जाएं, उससे फ़ायदा तो होता ही है। जैसे हमारा तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है, हम उससे एक स्टेप आगे भी चले गए हैं क्योंकि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड साइंस से है और हम बहुत कुछ चीज़ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करते हैं। तो हमने वहाँ तक डेटा एनालिसिस करके कन्विंस किया है स्टूडेंट्स को कि सोलर पैनल लगाना वो तो अपने आप एक साइकिल है, डे लाइट की वजह से वो कन्वर्जन होता है, लेकिन उसकी क्लीनिंग पार्ट और क्लीनिंग करने से या नहीं करने से एफिशिएंसी कितना फ़र्क आता है वो डेटा एनालिसिस करके हमने स्टूडेंट को उनको ही इन्वॉल्व करवाया। तो अभी जैसे मैडम ने बताया, हमारे एक स्टूडेंट ने अपने जो क्लाइमेट एक्शन में हमने टास्क दिया था, आप छोटे छोटे काम कुछ अपने हिसाब से करो जिसमें आपको बर्डन भी ना हो, इन्वेस्टमेंट भी ना हो, फिर भी काम हो जाए। तो एक स्टूडेंट ने जिम्मेदारी ली है कि वो इन एंड अराउंड में आजकल बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है सोलर पैनल का, तो वो जाके लोगों को कन्विंस करता है कि आप पैनल को फ्रिक्वेंटली क्लीन करो, उसको कैसे मेंटेन करना है आप मॉनिटर करो। सो इन अ वे इट इज़ नॉट लाइक जस्ट सेटिंग अप द सोलर पैनल, लेकिन उसको रनिंग में आपको सिर्फ क्लीन करना है। तो वो भी एक अवेयरनेस है। 10% से 15% कन्वर्जन एफिशिएंसी, मतलब जो फ़र्क होता है प्रोडक्शन में, 15% प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। तो आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज होता है, क्लीनिंग करना है, बट वो अगर आप रेगुलरली करते हो तो उसमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो वो एक हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, जो लोग ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है उनको हम मोटिवेट करते समझाते कि ये भी आपका एक जिम्मेदारी है। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सभी पैनलिस्ट ने जो हमारे साथ कहानियाँ शेयर की, इनको सुन के तो बड़ा अच्छा लगा और इतने कम महदूद लिमिटेड टाइम में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट पे बात करना मुश्किल तो है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि हम थोड़ा थोड़ा जो है हर मुद्दे को थोड़ा थोड़ा चलते चलते कवर कर लें। अब आप सबसे यही गुजारिश है, वक्त जो है मेरे पास ज़्यादा है नहीं, विल रैप दिस सेशन अप बिकॉज हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स गेस्ट दे आर हियर। तो जाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि जब हम सोशल मीडिया पे तमाम मासी पेजेस फॉलो करते हैं, साथ में ऐसे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करें। अगर आप उस एरिया से दूर रहते हैं तो आप एक फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, इनके काम को फॉलो कर सकते हैं और कभी कभी अपना जो है सपोर्ट भी दे सकते हैं। इट मेक्स डिफरेंस टू पीपल लाइक अभिषेक एंड पीपल लाइक परेश कि इनको कहीं से सपोर्ट मिलता है। अगर इनको दिल्ली से एक लाइक मिल जाए या US से एक लाइक मिल जाए तो इनका जज्बा बरकरार रहता है। जज्बे में बस वो एक पीठ थपथपाना एक बड़ी बात होती है।
तो क्लाइमेट चेंज में हम सभी वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स, तो एक दूसरे को सपोर्ट और ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना मेरी गुजारिश होगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग so wonderful and encouraging all of us. Thank you so much, guys.